Very good evening friends. Today I'm going to provide you the another video of the same chapter of the flower. और इसमें we already completed the types of different kinds of parts of the flowers और what are the other feature also in present in the sunflower और वो उनके क्या purpose है that you know very well like brect and nectaries. So now the next topic is for today the sexual twin flower and general description of the फ्लोरल पार्ट्स. तो इसका थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे. काफ़ी कंप्लीट मैं कोशिश करूँगी कि टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वन चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं. सेक्सुअलिटी इन फ्लावर. मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. द एंथर्स of the stamen produce pollen which from the male cells male gametes. The ovary of the couples bear the ovules which encloses the egg cells female gametes. These are the two important parts of the flower. What are the male parts of the flower? It is the stamen. It's produce the pollens. जहाँ पे दो बाइलॉब फीचर आपने सबसे टॉप में देखा था. एक फिलामेंट था स्ट्रक्चर और उसके ऊपर दो बाइलॉब स्ट्रक्चर थे. उसके अंदर द बैग लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ एंड इट कंटेन द पोलेंस इन इट. Clear? And it is known as the male gametes. The ovary of the carpels bear the ovules which encloses the. और जब हम pistils को देख रहे थे, what is the lowest part of that one pistil, the carpel, it's known as the ovary and it contains the seed like structure in it that is known as the ovules. The stamen in the carpels are the male and female parts of the flower respectively. The flower which contain both stamen and carpels is called bisexual flower or hermaphrodite or just a perfect flower. Complete flower also we know that ना, जो हमने कल इसको complete करा था. A flower which has only one of these parts, that is having only the stamen or only the carpels, is called unisexual or incomplete imperfect flower, papaya or palm. The example is papaya and palm. इसमें सिर्फ एक ही part होगा, reproductive part, whatever it is, male or female, but it consists only the one part of the flower. ठीक है. A unisexual flower which contains only the stamen is called the male or staminate flower. जिस फ्लावर के अंदर only the male part it contain the staminate flower, जिसमें क्या होगा, मेल पार्ट होगा, that is known as the staminate flower. Clear? And a flower which contain only the carpels is called the female or pistillate flower. The staminate flower and pistillate flower, as from the name you easily understand कि what kind of parts it's है, कौन सा part इसमें है, female है या male वाला है. And it is known as the unisexual flower, जहाँ पे कि या तो फिर उसमें सिर्फ stamen होगा या फिर उसमें pistil होगा. Clear? And imperfect and perfect flower we already done. Clear? Now that's next is the neutral flower. A flower in which both male and female reproductive organs are lacking. Example, ray floret of sunflower. न्यूट्रल, लाइक न्यूट्रल भी हम जिसको कह सकते हैं, इन केस आप थोड़ा रिजेंबल कर लीजिएगा वर्ड को कि न्यूट्रल फ्लावर क्या होगा. वट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज़ व्हेन इट्स नॉट कंटेनिंग एनी पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट्स मे बी स्टेमिन और पिस्टिल दोनों एब्सेंट होंगे. दैट इज़ नोन एज द न्यूट्रल फ्लावर. क्लियर? एग्जाम्पल इज रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर. Hope it's clear. Next is the general description of the floral parts. What is first one? The calyx. Sepals, usually there are 5 sepals, sometimes there may be the less or in a few cases even more. Calyx क्या है? What is the green leafy structure present inside the flower, that is known as the calyx. The lowest basal part of the flower. So what is the number? 5 sepals होते हैं. Sometimes they may be less or maybe in few cases even more. 5 से भी ज़्यादा होगा. The sepal may be free. It is known as the polysepalous or fused gamosepalous. जब क्या होगा कि जब ये क्या होंगे, फ्री होंगे. I think this is clear now. जब ये बिल्कुल फ्री होंगे, this is known as the polysepalous. As from the figure you can see that जब ये फ्री है, सारे सेपल्स क्या है, फ्री है, that is known as the polysepalous. And when they are fused, जब they all are joined, जब ये join होंगे, might be ये यहाँ से थोड़ा बहुत कट होगा, लेकिन they are joined from the base. बेसल जब इनका क्या होगा, they are joined together, that is known as the gamosepalous. fused form में होंगे. क्लियर? तो gamosepalous and polysepalous आपको कैलिक्स के फॉर्म में याद करना पड़ेगा. समटाइम्स एज इन हिबिस्कस शू फ्लावर देयर मे बी अ सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स कॉल्ड एपिसेपलस. कई बार इनमें क्या होता है कि दोहरी सीरीज होती है, अंदर से एक और सेपल्स की फॉर्म होगी, उसके बाहर से दूसरी लेयर होगी, दैट इज नोन एज दी
एपिसेपलस, कलेक्टिवली कॉल्ड इट इज़ एपिकैलिक्स, उसको साथ में क्या कहेंगे, एपिकैलिक्स कहेंगे. व्हेन द फ्लावर ओपन द सेपल्स में फॉल ऑफ और परसिस्ट. सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन बट इन सम केसेस दे आर ब्राइटली कलर्ड कॉल्ड पेटलॉइड्स. हमने टर्म पहले भी पढ़ा है. व्हेन इट इज़ नॉन ग्रीन इट इज़ इन कलर, दैट इज़ पेटलॉइड्स. एज इन गुलमोहर, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट. गुलमोहर को क्या कहा जाता है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट. वेयर दे आर रेड, वहाँ पे क्या होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट, you can see that the figure also here, the sepals कैसे होते हैं, polycephalus when they are free, and when they are fused together, that is known as the gamocephalus. Now the next one is the sepals protected the young flower bud, and when green they also perform photosynthesis. Clear. ये दो functions के main function है. If the question is there कि what is the function of the calyx. So there is the first one is, if you see that in case of the bud बहुत tightly packed रखता है flower को, bud को, and in case of the when they are green they also perform the photosynthesis. Green होगा तो obvious सी बात है ये photosynthesis को वहाँ पे help करेगा. Next one is the corolla. Corolla is the petals. The petals are generally arranged in a single roll, but sometimes there may be double roll. Example poppy, or in spiral water lily there may be free polypetalous or united gamopetalous. Same in case of the सेपेलॉइड एंड पेटोलाइड्स के केस की, जैसे पॉलीसेपेलस एंड गैमोसेपेलस हमने पढ़ा, वैसे polypetalous and gamopetalous. When they are fused it is gamopetalous, and when they are free they are polypetalous or united. The petals attract insects from pollination. For pollination they also protect stamen and pistil. Now you can see that here the free, this one is the free petalous, there may be tubular. ऐसे केस में थोड़ा सा ही पैक्ड होंगे, बट व्हेन द फनल से कम्प्लीटली टाइट होंगे that means it is gamopetalous. Clear. And they protect the, what are they, main necessary essential part of the flower, that is it's protected by the petals. Next one is the endoecium. What is the male part of the flower, that is stamen. The number of stamen in different flowers may vary from a few to a large number. Each stamen has two regions, a long filament and an anther. हम इसको पढ़ चुके हैं, with the figure देख लिया था इसको. Attached to its extremity, the anther is usually two-lobed. Anther के क्या होते हैं, two-lobed होते हैं. Each lobe has two pollen sacs, 4 sacs in all. Within the pollen sacs are contained pollen grains. When fully matured, the pollen sac rupture to liberate pollen grains. Here you can see that जो lobed structure था, जो एंथर था फिलामेंट के साथ स्टक हुआ, इसमें 2 lobed होते हैं. इट मीन्स चारों में क्या हो गया, 4 lobed हैं. दे आर कम्प्लीटली फिल्ड विद द pollen grain. इसके अंदर क्या होता है, pollen grain भरे होते हैं. एंड व्हेन दे मैच्योर्ड इनफ, जब ये मैच्योर हो जाते हैं pollen grain, they ruptured and liberate pollen grains. The pollen grains are generally powdery particles of the different shape and size. आपने देखा होगा कभी आप फ्लावर को टच करते हैं, आपके फिंगर टिप्स में कभी पाउडरी मटेरियल, जो भी ब्राइटली शाइनिंग वाला जो पाउडरी मटेरियल, दैट इज नोन एज द pollen grain. Now, and in endoecium, stamen may be free, polyandrous, as in petunia, or joined in different way in single, double or several group. जहाँ पर तो क्या है कि ये क्या है, स्टेमन में भी फ्री, जहाँ पे बिल्कुल ही कम्प्लीटली फ्री है, ये कार्पल से जुड़े हैं, लेकिन ये क्या है, फ्री है. ओनली द फिलामेंट्स वॉज स्टक विद दी कार्पल्स, बाकी वो फ्री रहता है. लेकिन यहाँ पे 3 ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे हम स्टेमन की अरेंजमेंट को देख रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमन. सो व्हाट इज इन द केस ऑफ द पेटूनिया, इट इज endoecium, stamen may be free, it is polyandrous. Clear. And when it is single in group, means they all combine together, and वो single होगा group में, तो that is known as the monadelphous, diadelphous and polydelphous. Several in group, ये group में रहेंगे, लेकिन might be 10 या 11 के नंबर में ये एक एक group बना देंगे, और ये अलग अलग ये एक सिरे से joint रहेंगे. यहाँ पे one will be free and the other all are combined together. इनके examples के साथ हम देख लेते हैं, आपने might be देखा होगा examples को भी. First one is the monadelphous. Stamens are united in one group by their filaments. Only anthers are free. The first one you can see that here the category, it is in the China rose, staminal tube or cotton.
कॉटन का जो कपास का कभी पौधा होता है उसके फ्लावर को आप स्टडी करिएगा, अगर आपके आसपास कहीं होगा तो कपास के पौधे के फूल को आप देखिएगा, उसमें अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमन इज़ लाइक दैट, इट्स लुक लाइक दैट, ऐसे ही होता है। डायोडेल्फस, द फिलामेंट आर यूनाइटेड इन 2 बंडल्स, एग्जाम्पल पी, मटर का जो पौधा होता है उसके फ्लावर में आप देखिएगा दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू कैन सी दैट, क्लियर। आउट ऑफ 10 9 स्टेमन्स फ्रॉम अ स्टेमिनल ट्यूब वाइल 1 इज़ फ्री, सारे के सारे एक साथ 9 एक साथ जुड़े होंगे, बाकी एक क्या होगा, फ्री होगा। पॉलीडेल्फस, द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन सेवरल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में रहेंगे, 5 के ग्रुप में रहेगा, 6 के ग्रुप में रहेगा, या कोई भी नंबर ऑफ एंथर जो भी है, स्टेमन जो भी है, ये क्या होगा, ग्रुप में रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, बॉम्बक्स, बॉम्बक्स इज अ प्लांट, इसके ये इसमें ग्रुप में रहता है, सेवरल ग्रुप में ये डिवाइड हो जाएगा। Now the arrangement of the gynoecium. Carpus gynoecium is also known as pistil. It is composed of one or more carpels. Each carpel consists of 3 parts: stigma, style and ovary. हमने इसको ऑलरेडी पिक्चर में फिगर के थ्रू देख लिया था। Stigma is a terminal lobe-like part. It may be divided into 2 or more lobes and may assume a feathery appearance. The stigma is covered with hair or with glandular papillae. इट सर्व एज ए लैंडिंग प्लेस फॉर द पॉलिन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। आपने देखा होगा सबसे टॉप में किस तरीके का फिगर जिसमें कि क्या होता है, पॉलिन जिसके ऊपर गिरते हैं, देन दे पॉलिनेट दे स्टार्ट द पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज द स्टाइल इज द ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल स्टाइल विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। It is the connecting link between the stigma to ovary. Ovary is the soil basal portion composed of one or more carpel. The inner cavity of the ovary may be a single chambered or divided into several chambers. Locules. You know that that one chambers is known as the locules. Each containing a number of the rounded bodies, the ovules. Seed like छोटे छोटे seed like structures के अंदर होंगे जिनको क्या कहते हैं, ovules कहते हैं. The cushion of the soil region in the ovary giving origin to ovules is called the placenta. एंड जो एक कुशन की तरह एक प्रोटेक्टिव बॉडी इसके अंदर होती है जो कि ओव्यूल्स को किसी भी हार्म से बचाती है, दैट इज नोन एज दी प्लेसेंटा। नाउ द सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, इन मोस्ट प्लांट्स द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। इन मैनी प्लांट्स द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट। सच प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन से होते हैं, मोनोसियस प्लांट एंड डायसियस। एज द नंबर ऑफ द पार्ट्स वी कैन सी दैट, यहाँ पे देखेंगे। Male and female flower grown on the same plant. It is maize, cucumber, pumpkin, etc. This is known as the monoecious plant, जिसमें कि एक ही प्लांट में दोनों तरीके के दोनों ही तरीके के फ्लावर्स इसमें ऑरिजिन करेंगे, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज डाइशियस प्लांट, मेल फ्लावर स्टेमिनेट एंड फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट, ग्रो ऑन डिफरेंट प्लांट्स, एग्जाम्पल पाम एंड पपाया एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। एंड मोनोसियस एंड डाइसियस में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, डेफिनेशन लगभग अप्रॉक्स एक ही जैसे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द इनफ्लोरेंस ऑफ द एंड प्लेसेंटेशन। Inflorescence and placentation. Inflorescence is the mode of arrangement of flowers on the axis of the plant. फ्लावर की अरेंजमेंट जो होती है वो प्लांट में किस तरीके से होती है, दैट इज नोन एज द इन्फ्लोरेंस, ठीक है। इसको भी हम क्लियर देखेंगे और क्या है इसमें। Here we can see that the arrangement of the flower may grow in several different ways in the different plants, such as first one it is, you can see that अगर ये रेड कलर के डॉट्स को हम फ्लावर मान के चलते हैं तो हाउ इट्स गोइंग टू बी अरेंज, कैसे हो जाता है ये। Singly either at the apex of the main stem or at the terminal apex of the lateral branches. कहीं पे भी या तो फिर सिंगल ऐसे ब्रांच में होगा या कहीं पे भी लेटरल ब्रांचेज में ये क्या होगा, अरेंज्ड होंगे। सेकंड इज इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स, लीव्स के जो एक्सिल ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे फ्लावर्स क्या होंगे, ये ग्रो कर रहे होंगे। दिस इज द अनदर वन अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेंस इसको कहते हैं, और ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, किस तरीके से फ्लावर अरेंज है प्लांट में। नेक्स्ट इज growing out from the axils of different leaves reaching the same level making a cluster। अब एक क्लस्टर सा बना रहे हैं, ये यहाँ पे आएंगे, चाहे आप ये देखिए इसका फिलामेंट सबसे लेंदी है, यहाँ तक जाते जाते शॉर्ट हो गया, लेकिन वो एक लाइन में एक सीक्वेंस में क्या है वो ग्रो कर रहे हैं, कई प्लांट्स में से होता है। नेक्स्ट वन इज द एक्सिस इज लिटरली फ्लैटर मेकिंग अ डिस्क एज इन सनफ्लावर। द यंगेस्ट फ्लावर्स आर इन द सेंटर एंड द ओल्डेस्ट इन द पेरिफेरी। आपने सनफ्लावर में कभी देखिएगा एक बिल्कुल ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्या होता है, फ्लावर ऐसे अरेंज होते हैं, बट एक ऐसे लेबल बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। दिस इज नोन एज द पेरिफेरी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज द मैनर इन विच द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन द प्लांट ओवरी।
कैसा प्रेजेंटेशन होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कराऊँ। अगर प्रेजेंटेशन ये होगा कि कईयों में क्या होगा, सीड ऐसे ग्रो करेगा, ओव्यूल जो होगा इस तरीके से, कई में क्या होगा कि इस तरीके से, दिस इज ओनली दी प्रेजेंटेशन। कहीं पे कैसे अरेंजमेंट होगा, सेम लाइक दैट इन केस द इनफ्लोरेंस, बट ये केस हो रहा है ओव्यूल के केस की बात कर रहे हैं हम, कि ओव्यूल में वहाँ पे कैसे से अरेंजमेंट होगा। क्लियर, दैट इज़ नोन एज दी प्रेजेंटेशन। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानना है, बिकॉज आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा और नहीं पूछा जाएगा। ओव्यूल्स टर्न इनटू सीड इन द मैच्योर फ्रूट्स, ट्रांसफॉर्म्ड ओवरी। Their different arrangement can be seen in fruits such as those as pea, tomatoes, mangoes, lotus, etc. इन सब में आप सीड्स की अरेंजमेंट देखिएगा। मैंगो में एक बड़ी सी सीड होती है, टोमेटो में छोटे छोटे सीड होते हैं, पी में एक लाइन में अरेंज होता है। तो ये एक अरेंजमेंट है सीड्स की। एंड ओव्यूल से ही क्या बनता है, सीड्स बनते हैं। एंड व्हाट इज़ द ओवरी, द आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स, उससे फ्रूट बनता है। क्लियर, ये चीज़ आपको, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी टॉपिक्स ही आप ज़रूर पॉइंट टू रिमेंबर भी इसको रीड कर लीजिएगा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी कोई क्वेश्चन होगा काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।